morning, good afternoon, good evening, and a very warm welcome to you all in our YouTube channel. Students, I hope you all must be fine and enjoying your studies through our YouTube channel. Students, as you all know that we were discussing about geography and proceeding towards the same thing, today we are going to start our new chapter, that is of class 8, that tells about the natural vegetation and the wildlife. That means in our earth, it is not only the human beings which is surviving, which is living, but apart from human beings, there are so many kinds of vegetations, wildlife, animals are there, birds are there, and so many different kinds of plants, trees are being available on this beautiful earth. Before the arrival of the human beings in this nature, these plants, small trees, plants, and so many things have first they have came, and after that we human beings have came. So in this chapter today we will be covering and knowing about all these different types of natural vegetation which is found on earth and how these things are affected by human activities also. And we will be discussing about the different kinds of wildlife which are being present on earth. Now let's have a look about what do you mean by natural vegetation. Fine. So natural means the thing which is already being available or the things which are being given by the nature or by gifted by God to us. That means in that natural thing the human being does not play any kind of role in it. Fine. Exist in the narrow zone called biosphere. All those, if it say that natural vegetation and the wildlife, where do they exist? They exist in the biosphere. Fine. And now what does this biosphere mean? Biosphere where lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet. Lithosphere means it is related with the land. जहाँ पे land होगी that is known as lithosphere. Hydrosphere is related with water, means water bodies are there, and atmosphere is related with air. Fine. So जहाँ पर land, water, air तीनों चीजें का combination होता है that is known as biosphere. Bio means what? Life. Fine. So जहाँ पर ये सारी चीजें होती है only there the survival of the life or the life can be possible if there is land. लैंड पे भी जीवन हो सकता है या फिर पानी में जीवन होगा या फिर एयर पे. फाइन. सो ऑल दिस आर कंबाइंड बाय द नेचुरल वेजिटेशन कंप्राइजर. फाइन. द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम. नेचुरल एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म उसको हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम. दैट इज नोन एज ecosystem. Now let's have a look to know about what do you mean by natural vegetation. Natural vegetation means the plants that grows naturally in a region without the help or interference of the human beings. जैसे कि मान लीजिए जंगल है तो जंगल किसी ह्यूमन बींग्स ने नहीं उगाया है. ठीक है. अगर आपके घर के सामने कोई ग्रास है, ग्राउंड है, तो अपने आप बहुत सारे प्लांट्स जो और ट्री छोटे मोटे जो है वो अपने आप उग जाते हैं. क्यों उग जाते हैं? बिकॉज द नेचर इज गिवन. जो सही एटमॉस्फेयर उनको मिलता है, सनलाइट मिल रही है, एयर मिल रहा है, लैंड है, उसकी कुछ फर्टिलिटी है, तो अपने आप जो चीज उग जाती है नेचुरली उगती है. उसमें ह्यूमन बींग्स कोई भी, जैसे कि अगर हम अपने घर पे कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसको हम सीड लेके आ रहे हैं या फिर उसको कुछ किसी तरह से उसको प्लांट ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ नेचुरल. लेकिन हम नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब वो होता है जिसमें खुद ब खुद वहां के एटमॉस्फेयर से वो चीजें निकल आ रही है, वहां का एटमॉस्फेयर उनको सपोर्ट कर रहा है. ठीक है. यू माइट हैव सीन दैट इन द हिली एरियाज वेयर द स्नो इज फॉलिंग, वहां के ट्रीज कैसे होते हैं? उनका जनरली टॉप जो है वो पॉइंटेड होता है और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे चौड़ा हो गया था. जैसे कि हम लोग सीनरीज वगैरह में बनाते हैं जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, ताकि यहाँ पे जो स्नोफॉल हो रही है तो आराम से वो स्नो जो है वो नीचे आ रहा है. ठीक है.
तो ये क्या है, वहां की नेचुरल वेजिटेशन है जो वहां पे सपोर्ट करती है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो गर्मियों के सीजन में ग्रो करते हैं। आप सोचिए जहां पे गर्मियों का सीजन वो होता है जहां पे बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर जो है वो बॉडी से भी निकलता है, प्लांट्स भी जो होते हैं वो निकालते हैं अपनी बॉडी से मॉइस्चर। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो गर्मियों के सीजन में ही वो बहुत अच्छे से फलते हैं, फूलते हैं। तो हाउ डज दिस हैपन? दीज आर द नेचुरल एटमॉस्फेयर व्हिच इज सपोर्टिंग देम फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लांट्स, फाइन। इफ यू टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ भी मिलते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं और बॉडी भी उनकी उसी तरह से अडॉप्ट होती है। जैसे कि पोलर बियर, आप सब लोग ने कार्टून्स मूवीज में भी देखा होगा। उसमें क्या होता है कि पोलर बियर क्या है, उसके बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं कि जहां पर बिल्कुल पूरा स्नो से कवर है, आइस से कवर है, बारिश के नाम पर सिर्फ बर्फ गिरती है, एट दैट वेरी एटमॉस्फेयर द वेदर टेम्परेचर इज available in -10, -45 degrees Celsius. Over there, the vegetation is also there, and upon that animals are also there. तो जो animals हैं, सोचिए उनकी बॉडी किस तरह से अडेप्ट होती होगी। तो बहुत ज्यादा बाल होते हैं उनके शरीर पे ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं वो भी वहां पे सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। उनके अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं ताकि वो अपने जो स्नोफॉल हो रहा है वो पूरे अपने बॉडी पे ना रखें और वो नीचे उसको गिरा सकें, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरली एटमॉस्फेयर में ग्रो करती हैं। उसमें ह्यूमन बींग्स कोई भी रोल नहीं प्ले करता कि हम जा रहे हैं और वहां पे कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं। नो, दीज प्लांट्स आर ग्रोइंग नेचुरली, फाइन। जैसे आप कुछ भी मत करिए, कोई भी पीस ऑफ लैंड है तो अपने आप कुछ ना कुछ खरपतवार जिसको कह सकते हैं वो अपने आप उग जाते हैं। तो दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन, फाइन। नाउ व्हाट इज biome mean? Biome is a large region of the earth that has particular type of climate and particular type of living things. Biome means just now we have discussed, जैसे कि पोलर बियर्स हैं, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्यों? अगर उन पोलर बियर्स के इंडिया जैसे कंट्रीज में रख दिया जाए जहां पे हॉट rather temperature, they won't be able to survive, fine, because their body has been adapted towards that they will be able to survive in a polar region or in a region where the climate is very low, fine. If we talk about camel, what is the camel? Now उसको हम रेत में इतने अच्छे से वो रह लेता है, ठीक है। और देखिए जब हवाएं चलती हैं तो धूल भरी आंधी चलती है रेगिस्तान के एरिया में, तो वहां पे क्या अगर थोड़ी सा एक छोटा सा भी कण हमारी आंखों में पड़ जाता है तो वो कितना परेशान करता है। अब सोचिए जब वो कैमल जब सैंड के बीच में से चलता है तो उसको कितना चीजें फेस आउट करना पड़ता है। तो जो कैमल की जो आंखें होती हैं तो उसमें एक पलक नहीं होती, 3-3 पलकें होती हैं। और एक पलक तो ऐसी होती है कि वो ट्रांसपेरेंट होती है, अगर वो अपनी आंखें बंद कर देता है तभी भी उसको दिखाई देता है बाहर का। तो सोचिए भगवान भी कितने अच्छे से अडेप्ट करने के लिए भगवान ने इन सब चीजों को भेज रखा है कि है वहां पे उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन को वो सूट करते हैं और वो अपने बायो में वो लोग सर्वाइव करते हैं। पर्टिकुलर टाइप का वहां पे क्लाइमेट होगा, वहां की वेजिटेशन अलग होगी, ठीक है। इसीलिए उनके ग्रास लैंड है, कहीं पे हमें अपने अर्थ पे ही वी कैन सी समवेयर ग्रासलैंड आर बी फाउंड। सम कंट्रीज आर full of desert only, so much of desert are being found, fine, and so much of rainfall is being experienced, fine, and some are there having different kinds of vegetation are there. And in India we are having a mixture of almost different kinds of vegetations and lifestyle, fine. So I think so the introduction is clear to you all, so let's proceed further to know more about it. Now we will be discussing about types of natural vegetation. Just now we have learned about that, what do you mean by natural vegetation. Now natural vegetation are also found on different types of being available, so let's study different types of it. First is like forest, grasses, tundra and shrubs, fine. What do you mean by forest? Jungle, ठीक है। jungle क्या है? Are associated with areas having heavy rainfall. Generally, the heavy, thick kind of forests are being available, are present in the areas where heavy rainfall is being observed, fine.
the amount of moisture decreases, the density and the size of trees also reduces. Fine. अगर जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, पानी की कोई कमी नहीं है, if we talk about our eastern side of our country, where our seven sisters are there, fine, seven state of the state, तो वहां पे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम वाला एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन भी देखने के लिए मिलती है. Why? Because वहां पे रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा होती है, मोर देन 400 सेंटीमीटर्स. फाइन. तो वहां पे जो हमें देखने के लिए मिलेंगे फॉरेस्ट जनरली वैसे मिलते हैं जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है. जब रेनफॉल ज्यादा है तो वहां पे एस टाइप के फॉरेस्ट हमें ज्यादा मिलेंगे देखने में. और जहां पे रेनफॉल धीरे धीरे, जब रेनफॉल जो है कम होती रहती है, तो वहां पे जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो भी उनका साइज भी रिड्यूस होने लगता है. फाइन. जहां पे जैसे मेरा सतपुड़ा के घने जंगल आप लोगों ने पोएम्स में भी पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है कि जहां पे वेजिटेशन जो सूट करती है, कि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, हमें वाटरफॉल्स बहुत अच्छे से मिल जा रहे हैं, ठीक है, वाटर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, then over there the vegetation, natural vegetation is higher and generally forests are being found in those areas. Fine. Now grassland, regions of moderate rainfall and have short tuned trees and grasses. grasslands, ठीक है, मतलब कि ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे हमें जो ट्रीज मिलते हैं देखने के लिए, उनकी जो हाइट होती है वो कम होती है. Why it's so? Because the rainfall is comparatively less as compared with the forest areas. Now we can also see thorny shrubs found in dry regions of low rainfall. As you all must be knowing about cactus tree. Cactus कैसा होता है कि उसके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, कांटेदार होते हैं, ठीक है. और जनरली दीज काइंड ऑफ कैक्टसेस आर बीइंग फाउंड इन द एरियाज वेयर द रेनफॉल इज वेरी लो. फाइन. जैसे कि ड्राई एरियाज होते हैं, जैसे हमारे कंट्री में राजस्थान वगैरह, लेकिन ये देखने में तो ऊपर शॉर्ट दिखते हैं, ताकि वो क्या है, जितना भी ट्रीज बड़ा होता है, ठीक है, तो जब गर्मी आएगी तो उतना सा मॉइस्चर भी वो इवेपोरेट होता है. वी ऑल नो अबाउट वाटर साइकिल. तो मॉइस्चर वो इवेपोरेट होने से बचाता कैसे है कि जब उनके पास लीव्स से बिल्कुल पतले दुबले से हैं या फिर बिल्कुल थॉर्नी टाइप के हैं, तो मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब अपने अंदर तो रखते हैं, लेकिन बाहर इवेपोरेशन करने के लिए उनके पास बहुत ही कम होता है. एंड जनरली दीज काइंड ऑफ trees or plants which are being found in the dry areas or thorny areas, these are the plants and their roots are deep below the earth crust. ठीक है, जो हमारी धरती के सतह पे बेशक वो छोटे प्लांट दिखाई दे, लेकिन अंदर उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफी अंदर तक होती है. ऐसा क्यों होता है? ताकि जो पानी का जो लेवल है वहां जो ड्राई एरियाज होते हैं वहां पे क्या है, काफी अंदर होता है. ठीक है, तो वो जो ड्राई एरियाज को पाने के लिए उनकी जो रूट्स होती हैं वो काफी हद तक अंदर होती है एज कंपेयर टू द अदर प्लांट्स व्हिच आर फाउंड इन अदर एरियाज. फाइन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टुंड्रा रीजन. वेजिटेशन क्या होता है? इज फाउंड इन पोलर रीजन. पोलर रीजन मींस वेयर द अर्थ इज बीइंग कवर्ड विद आइस एंड स्नो. फाइन. It comprises of masses and niches. मतलब वहां पे जो प्लांट्स होते हैं उनका रीजन अलग होता है, वो शेड करते हैं अपनी लीव्स को, या जो भी रहता है रीजन उनका ये रहता है कि वो इस तरह से अडेप्ट रहते हैं कि हम इतने स्ट्रीम कंडीशन में, इतनी कड़ाके की ठंड में भी वो लोग खुद को सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, तो फॉरेस्ट ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे पानी बहुत ज्यादा है. ग्रासलैंड हमें मिलते हैं जहां पे मिला जुला संगम जिसको कह सकते हैं, ना ज्यादा पानी है बरसता है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है. ठीक है, थॉर्नीज या शर्प्स जिसको कह सकते हैं, द एरियाज वेयर लो रेनफॉल इज देयर एंड टुंड्रा रीजन व्हिच डोंट हैव रेनफॉल but they are being mainly covered with ice and snow. Study about different kinds of forest. Forest can be further divided into two parts. First one is evergreen forest and the second one is deciduous forest. What is by evergreen forest? Evergreen forest means that in every season they are green. That means they don't shed their leaf in any kind of particular season.
जो जैसे वो गर्मी में है वैसे बारिश में या वैसे ठंड के सीजन में, चाहे जिस भी सीजन में आप देखिए, दे आर एवरग्रीन, वो हमेशा वो फलते फूलते रहते हैं, ठीक है। दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन द सेकेंड पॉइंट इज deciduous forest. Deciduous forest means those forests which shed their, forest means the trees which shed their leaves in any particular season, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सीजन में वो अपने शीट जो पत्ते होते हैं उनको गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि वो ऐसा करते क्यों है? जनरली दे शेड देयर लीफ टू अवॉइड द ट्रांसपिरेशन ऑफ मॉइस्चर। जैसे कि अगर उनको मॉइस्चर को कंट्रोल करना है अपनी बॉडी से, तो वो क्या करते हैं, अपने पत्ते को गिरा दिया। जब पत्ते ही नहीं रहेंगे तो इवापोरेशन होके या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए वो अपने पास जो है वो रखा, लेकिन वापस से वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड मिड लैटिट्यूड फॉरेस्ट, राइट। देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं? These are found mainly in monsoon region of Asia, Central America, Brazil and Northern Australia, fine। इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं जो अपने किसी पर्टिकुलर सीजन में अपनी जो लीफ को शेड कर देते हैं, वो ऐसे रीजन्स में मिलते हैं। दैट इज मिड लैटिट्यूड जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं इन द नॉर्थ ऑफ मॉनसून फॉरेस्ट लाइक यूरोप, सदर्न जापान में इस टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने के लिए मिलता है। एंड ये जनरली शेड लीव्स इन ऑटम एंड रिमेन लीफलेस थ्रू आउट द कोल्ड विंटर्स। मतलब कि वो अपने एक बार ऑटम में अपने पत्तों को गिरा देते हैं तो पूरे ठंड भर वो बिना पत्तों के ही रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हुए मिड लैटिट्यूड के फॉरेस्ट। और कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जिसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, जो जिनका किसी भी पतझड़, सावन, बसंत, बहार का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे साल जो है उन पे पत्तियां रहती है, वो फलते हैं, फूलते हैं एंड सर्वाइव भी करते हैं। By now students, we will be studying what are the importance of forest for India. Fine. How it is helpful for India. First of all, boost our economy by providing wood, sal, neem and so many important plants and trees. Boost our economy means जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा अर्थशास्त्र है, उसमें जो ये प्लांट्स होते हैं ना, एनिमल ये ट्रीज होते हैं, वो जैसे कि हमारे पास नीम हम लोग के पास है, ग्रो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। तुलसी जी के पौधे हुए और ये साल है, वुड है। तो ये जो हम लोग बाहर के देशों में बेचते हैं या अपनी ही कंट्री में, जैसे कि नीम की क्या है, दातुन बनती है, ठीक है, नेचुरल दातुन है, या फिर हम उससे क्या है टूथपेस्ट में भी इसको मिला के बेचते हैं कि नीम है इसमें, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो उसमें क्या है उनकी वैल्यूज होती है। या फिर वुड है, वुड का काम क्या है, वुड से बहुत सारी चीजें हैं जो बनती है, फर्नीचर से लेके बहुत सारी चीजें, डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाते हैं। तो when these are being manufactured and these are being sold in the market, then it boosts the economy of our country, right? Then it's provide employment. जैसे कि जंगल है, जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग क्या है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया है। जो लोग इसकी खेती करते हैं या फिर बड़े पैमाने पे हम लोग प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं या फॉरेस्ट है उसको देख रहे हैं, तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने नीम है, तो नए नीम के ही बहुत बड़े बड़े हमने जो है पूरे जंगल बना रखे हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में नीम की बहुत डिमांड है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मेनी ऑफ द पीपल हु आर बीइंग डिपेंडेंट अपॉन इट। ग्रेट सोर्स ऑफ हर्बल मेडिसिन, एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट, कि क्या मेडिसिनल प्लांट्स बहुत होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा वनस्पति नहीं है जिसकी कोई भी वैल्यू ना हो, मेडिसिनल वैल्यू किसी ना किसी रूप में वो हमेशा कुछ ना कुछ इंसान को दे के जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जैसे अश्वगंधा है, तुलसी जी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके ऊपर टॉप उसके लीव से लेकर उसके प्लांट हुए, उसके रूट्स हुए, ठीक है, स्टेम हुए, छाल हुई, ठीक है, मुरेठी क्या है, छाली है। तो ये हर एक पार्ट एक प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं, ठीक है। तो ये है जो हमें मेडिसिनल वैल्यू है जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
As we all know, plants and trees provide oxygen and absorb carbon dioxide. We all know that plants and trees, what they do? They take carbon dioxide and in return they give us carbon oxygen to all of us, right? तो absorb करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जितना भी हम लोग पोल्यूशन वगैरह होता है वो सारे क्या मोस्टली क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस हैं जो निकलती हैं लेकिन ये प्लांट्स क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इन रिटर्न हमें क्या देते हैं ऑक्सीजन जो हमारे लिए लाइफ लाइन है जीने के लिए सर्वाइव करने के लिए और बहुत एनिमल्स के लिए भी ठीक है तो ये अगर हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड वो क्या कर रहे हैं दे आर डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइन देन इज absorb rainwater and fight flood by absorbing flow of water. ये क्या है जो रेन वाटर है वो एब्जॉर्ब करते हैं कैसे एब्जॉर्ब करते हैं जैसे कहीं पे भी अगर बहुत ज्यादा ट्रीज हैं ठीक है बहुत ट्रीज हैं कहीं पे और रेन फॉल जब होता है तो इनकी जो जड़ी होती हैं जो रूट्स होते हैं वो तो बहुत दे आर बीइंग स्प्रेड इन द अर्थ क्रस्ट ठीक है तो जो ये वाटर फ्लो हो रहा है तो उन्होंने खुद से ऑब्जॉर्व किया इनके जो रूट्स है उन्होंने पूरे जो सॉइल है जो फर्टाइल सॉइल है उसको अपने पास एब्जॉर्ब करके रखा अपनी जड़ों में उन्होंने बहने नहीं दिया उसको ठीक है और ये सारे वाटर लेवल को भी चेक कर रहे हैं फ्लड आने से भी रोक रहे हैं और जो टॉप लेयर है जो सॉइल एरोशन को भी रोकते हैं जब वो पानी को बहने नहीं देते हैं कि पानी के साथ जो फर्टाइल सॉइल होती है वो भी बह जाती है और एक जगह से विनाश करते हुए वो दूसरी जगह भी चली जाती है तो अगर हम इन प्लांट्स को कट कर देते हैं देन व्हाट हैपेंस ये जो रेन वाटर है जो फ्लो करते हुए आया वो खुद तो भी ले गया और यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी थी उसको भी साथ में बहा ले गया ठीक है तो इट इफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द वन प्लेस ऑल्सो एंड इट कॉजेस फ्लड ऑल्सो सो इफ वी आर हैविंग more and more trees so it checks the soil erosion and checks the flood also then check soil erosion I have just explained it now habitat of the wildlife these plants or these thick forests are the habitats of the natural habitat of the so many kind of wildlife are being available here ठीक है हम लोग जंगल बुक देखते हैं तो उसमें क्या है जंगल में ही है वो उस मोगली की कहानी ठीक है और ना जाने कितने पशु जानवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बीइंग सर्वाइवल इन दिस फॉरेस्ट ओनली राइट तो ये नेचुरल हैबिटेट है उनको सर्वाइव करने के लिए सो वी हैव केम टू नो अबाउट दैट apart from boosting the economy it provides employment it provides a fresh air it helps in checking soil erosion it tries to control the flood and so many things so you can imagine how important role these forests play in our economy now we will discussing how or what are the steps taken so that the conservation of the forest can be done right first one is massive afforestation afforestation means growing more and more plants and trees fine massive means on large scale we are doing it ठीक है क्योंकि जितनी रफ्तार से प्लांट्स और ट्रीज को काटा जा रहा है उतनी रफ्तार से वो ग्रो नहीं करते हैं ठीक है इट टेक्स एटलीस्ट 5 to 6 years for the growth of a proper plant or a tree so massive afforestation should be done that means the more and more trees should be grown then large scale cutting of trees should be banned right deforestation को बंद करना है और afforestation को राइज करना है large scale पे हम कोई भी रीजन हम लोग जो ट्रीज को काटते रहते हैं उस पे हमें बाल लगाने की जरूरत है कि प्लांट्स और ट्रीज को हमें नहीं काटना है अवॉइड फॉरेस्ट फायर मतलब ऐसे मतलब किसी केयरलेसनेस की वजह से अगर कुछ भी ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से अगर जंगल में आग लग जाती है एज यू ऑल नो कोई भी कहावत भी है कि ये बात जंगल में आग की तरफ फैल गई क्यों क्योंकि सारे प्लांट्स ही होते हैं ट्रीज ही होती है एक जगह आग लगती है तो बहुत जल्दी वो कैचअप कर लेती है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात होती है कि कोई भी ऐसा नेचुरल कॉज ना हो जिसके कारण जंगल में आग लगे ठीक है ओवरग्रेजिंग ऑफ कैटल शुड बी बैन जो हमारे पशुपाल होते हैं वो जो ग्रीस करते हैं मतलब घास खाते हैं तो वो भी क्या है
अर्थ प्लस का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हटा देते हैं, तो उनको भी अवॉइड करने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा वो चीजें ना हो। कंट्रोल ओवर डिजीजेस, जो प्लांट्स की जो बहुत सारी ऐसे डिजीजेस होती हैं विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द प्लांट शुड बी ट्राइड, proper vaccination should be done so that we should be able to control the diseases which is prevailing in the plants. Spread awareness among people. More and more people should be made aware either through skit, dramas, movies, campaigning, and so many things. Fine. So that these things can be avoided and more plants and trees can be. We will be studying about wildlife. Fine. Wildlife refers to non-domesticated species living in the wild and natural environment. Example, animals. Fine. Wildlife means the thing, the animals which are living in the forest, we can say. That means हम जिनको अपना पालतू जानवर या डोमेस्टिक एनिमल्स हम नहीं बनाते, हम अपने साथ उनको अपने घरों में नहीं रखते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, शेर्स हैं, ये सब क्या है, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं, नहीं। दीज ऑल कम अंडर टू द वाइल्ड एनिमल्स। चीता है, बाघ है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एनिमल्स मिलते हैं, और वो भी एक नेचुरल, जैसे कि हम लोग ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, दे आर ऑल्सो अ नेचुरल वेजिटेशन, वो अडॉप्ट होते हैं और वो अपने नेचुरल एनवायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। अब हाउ, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व मींस आर अ सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज व्हिच लिंक थ्रू ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। ऐसे बायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई होती हैं, बर्ड की भी सेंचुरीज होती हैं, जिसमें एक नेचुरल हैबिटेट बनाया होता है, और जिसमें जो है हमारे प्लांट्स हैं वो अपने आप मतलब खुद अपने नेचुरल एनवायरमेंट्स में रहते हैं। हम ये उनको ये नहीं कहते हैं कि किसी पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ है, ठीक है, या तोते को बिल्कुल पिंजड़े में रखा है, या फिर शेर को किसी पिंजड़े में बांध के रखा है, ऐसा नहीं। वो पूरे अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ अपना नेचुरल काम करते हैं, लेकिन एक सुपरविजन होता है उनके लिए कि वो सही सलामत हो, कोई डिजीज ना हो उन लोगों को, मतलब उनकी एक सुपरविजन होता है, देख रेख होती है, और उनको उसमें अच्छे से मतलब संभाल के सुरक्षित उनको रखा जाता है नेचुरल एटमॉस्फेयर में। अब ये तो हुई वाइल्ड लाइफ के बारे में। एक्चुअली पढ़ते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, लेट्स हैव अ लुक। इट्स प्रोवाइड अस विद फर, लेदर, मीट, वुल। जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, दीज आर प्रोवाइड अस विद, कहते हैं एनिमल्स का हमें फर मिलता है, मीट मिलता है, वुल मिलता है, so many things are being available. So how these are things available? These are things which are being given to us by the wild animals. Then upon that, pollination of flowers, जो हमारे plants में जो pollination होता है, you might have studied in science also. So it helps in the pollination of flowers. Fine. Maintains balance in the ecosystem, whether it's a small insect or a big, वो क्या है कि ग्रास हॉपर किसको खाता है, घास को खाता है, ग्रास हॉपर को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, और ये ऐसे जो साइकिल है वो हमेशा चलता रहता है। जो हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो किस तरह से मेंटेन होता है, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम। देन वॉचिंग ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स, हम लोग को एक बहुत ही सुकून मिलता है देख के कि सिर्फ इंसान ही नहीं, इतने सारे खूबसूरत पशु पक्षी बर्ड्स जो है हमारे कुदरत के द्वारा यहाँ पे अवेलेबल है। अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर माइग्रेट करके माइग्रेटिंग बर्ड्स हमारे इंडिया में आते हैं, तो व्हाट इज दिस, so many, it attracts so many tourists, whether they are domestic or at the international level, which come to our country to visit all these kind of birds and animals which are living in the wildlife sanctuaries or in the bird sanctuaries, and we can see them into their natural atmosphere. Fine. So it, apart from providing us with so many things, these all birds, animals and wildlife helps in the development of our economy also. Now we will be covering what are the steps or the measures which are taken by the Indian government in order to protect and safeguard the wildlife. Hunting of endangered species in ban. Endangered species जो ऐसे प्रजाति होती हैं जो
लुप्त होने की कगार पे है। अगर कोई भी उसको हंट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उनका शिकार खेलता है, तो वो बिल्कुल बैन है, ठीक है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सजा भी मिलती है। प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैज बीन मेड, ठीक है, ताकि उनको हम नेचुरल हैबिटेट में उनको रख सके, प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 हैज बीन पास। अगर कुछ भी उसको, अगर कोई भी पर्सन है जो इस एक्ट के अगेंस्ट जाता है, इसको वायलेट करता है, तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को भी पास आउट किया गया है, ताकि हमारे देश में जो टाइगर की जो संख्या है वो बहुत ही कम होती जाती है। So that in order to safeguard and protect the tigers, one act has been passed for safeguarding them. Forest Protection Act was passed. Forest को भी preserve करना, protect करना. One act was being passed in the parliament in the year 1980, so that protection is provided for the forest also. Then more and more general public is being aware, made aware through different news channels, periodicals, magazines, and so many things, so that the general public gets aware that how destructive it is and how criminal offense it is if one is violating the law and hampering either wildlife or natural atmosphere of wildlife, that is forest, right? So making the general public aware is also the responsibility of the government, and also it is the responsibility of the common people also, so that this natural atmosphere and the wildlife sanctuaries and our natural forest, plants and trees should be protected, fine। तो ये हमारे देश की धरोहर है, उसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सारा काम हम सरकार के ऊपर ही नहीं सौंप देते। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बीइंग अ सिटीजन, well educated citizen, it is a duty of me and ours to protect and conserve our natural parks, wildlife sanctuaries, forests, and all those beautiful plants, animals, and things which are being given to us by nature. Fine. I hope this chapter must be clear to you all. So see you all very soon in our upcoming videos with some more informative information, facts, figure to enhance our more and more knowledge. By the time, keep studying and keep learning. Goodbye for today.